আজ ছট পূজার তৃতীয় বা শেষ দিন সকাল, যেটা সূর্য অর্ঘ্য দেওয়া হবে। সকালের যে সূর্য ওঠা, সেই সূর্যকে অর্ঘ্য দিবে যারা পুণ্যার্থীরা আছে এইখানে মাথাভাঙা ফুটুঙ্গা নদীর তীরে যে শর্ট ঘাট, এইখানে আমরা এসেছি। আমার সাথে সুবীর দত্ত, সুব্রত চৌধুরী, সুব্রতর কাছে যাচ্ছি। আমরা যেটা জানি এটা প্রকৃতির পূজা, এটা বৈদিক সময় থেকে রীতি। উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলো যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, এই যে রাজ্যগুলো, এখানে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষ এনারা এই পুজোর আয়োজন করে থাকে খুব আনন্দ এবং উল্লাসের সাথে। বছরের সবচেয়ে বড় এবং মুখ্য উৎসব এই ছট পূজা। এছাড়াও আমি যে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলো বললাম, তাছাড়াও ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে যায় যেখানে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষ আছে, যেমন এটা আমি পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার ফুটুঙ্গা নদীর তীর থেকে বলছি, ঠিক সেরকম যেখানে যেখানে হিন্দিভাষী মানুষরা আছে তাদের বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব, এই বড় বা মুখ্য উৎসব এই ছট পূজা। তো প্রকৃতিক পূজা বা প্রকৃতির পূজা, এখানে কোনো মূর্তি, বিশেষ কোনো মূর্তির ব্যাপার নেই। এটা বৈদিক যুগ থেকে আমরা বিভিন্ন যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে আমরা বিশ্বাস করে এসেছি। মানুষ একদম শুরুর থেকে যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে বিশ্বাস করে এসছে, সেই প্রাকৃতিক শক্তি যেগুলো আমাদের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তথা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন আমরা জানি সূর্যের আলো বা তাপ ছাড়া প্রকৃতি একবারেই চলতে পারে না, জীবনও চলতে পারে না। সেইখানে এই সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়া বা যে নবগ্রহের যে পূজা, যেখানে আজকে যে ষষ্ঠী তিথি বা এই ষষ্ঠীর পূজা, ছট মাইয়া যেটা বলা হয়, আর একদিকে থাকছে নদী বা গঙ্গা। এই যে পুণ্যার্থীরা মনে করেন যে এই বিশেষ দিনে যত যেখানে নদী আছে সেইখানেই গঙ্গা মায়ের আবির্ভাব হয়। তো সেই হিসেব করে যে আমরা যখন দেখি যে কোনো ভেজিটেশন থেকে শুরু করে গাছপালা সব কিছু, দুটো জিনিস ভীষণ জরুরি। এক তো জরুরি সূর্যের তাপে যে উদ্ভিদ মাটির থেকে জল সংগ্রহ করে সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে, সেখান থেকে তার পুষ্টি হয়। সেই ভেজিটেবল বা উদ্ভিদ আমরা সংগ্রহ করি বা খেয়ে আমাদের প্রাণ ধারণ হয় প্রাণীর। তো এইখানে এই দুটো জিনিসকে বিশেষ গুরুত্ব বা মহত্ব দেওয়া হয়েছে। নদী এবং সূর্য, এই নদীতে দাঁড়িয়ে সূর্যের গতকালকে যেটা ছিল অস্তমিত সূর্য, তাকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে। আজকে সকাল সূর্য উদয় হবে, সেই সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়া হবে, তার জন্য এই প্রতীক্ষা। माथाभंगा हिंदी भाषी सेवा संघ की ओर से सभी छठ व्रती तथा श्रद्धालुओं को हम इस मंच से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथ ही वर्तमान कोरोना परिस्थिति को देखते हुए छठ पूजा घाट कमेटी द्वारा जो संज्ञान में लिया गया था, सभी प्रकार के जितने भी दर्शनार्थी यहाँ आएंगे
या श्रद्धालु आएंगे सभी के लिए मास्क का पहनना अत्यावश्यक किया गया था और इस कोरोना परिस्थिति के मद्देनजर रखते हुए सभी छठ व्रतियों के लिए अलग अलग घाटों का आवंटन किया गया था और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सभी से आग्रह किया गया था। ये छठ पर्व 4 दिनों का पर्व है जो कि पूरे भारत तथा विश्व में विभिन्न देशों में मनाया जाता है। विशेषतः भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सभी राज्यों में जो भी हिंदी भाषी बंधु हैं सब बड़ी ही धूमधाम से इस छठ पर्व को मनाते हैं। 4 दिन का ये पर्व बहुत ही पौराणिक युगों से चले आ रहा है। हमारे पूर्वज जो इस छठ व्रत के लिए निर्देशिका दे गए हैं या पथ प्रदर्शन कर गए हैं, हम उसी प्रकार से इस छठ पर्व को मनाते आ रहे हैं। अगर पौराणिक कथाओं पे आलोकपात किया जाए, ये छठ पर्व का प्रचलन वैदिक युगों से चले आ रहा है। प्राचीन काल में महाभारत के युगों से, रामायण के युगों से भी इस पर्व का महत्व दिया गया है। अगर सत्य युग का हम तरफ आलोकपात करें तो लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद महाप्रभु श्री राम जब अयोध्या पहुंचे, उस टाइम कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सूर्य उपासना में व्रत हुए थे। तभी से इस पावन पर्व को मनाया जाता है। कुछ और कथाओं पे अगर आलोकपात किया जाए तो महाभारत के युगों में अंगराज कर्ण जो कि सूर्य पुत्र थे और बहुत ही बड़ा सूर्य भक्त थे, प्रतिदिन प्रातः वो सूर्यार्घ देने के लिए गंगा मैया में उतरकर कमर पानी में सूर्य को अर्घ देते थे। और भी पुराने कथाओं पे अगर आलोकपात किया जाए तो इस छठ व्रत का प्रचलन कब हुआ इसके बारे में पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सत्ययुग में श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। और भी पौराणिक कथाओं में अगर जाया जाए, एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियंवद जो कि निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इस पीड़ा से पीड़ित थे। तो उन्होंने महर्षि कश्यप के पास गए और उनको अपनी समस्या का सारा कुछ बताया। तो महर्षि कश्यप ने उन्हें पथ प्रदर्शन किया और पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। उस सलाह अनुसार महर्षि प्रियंवद ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया और यज्ञ के
आहुति के लिए बने हुए खीर का प्रसाद उनकी पत्नी मालिनी को दिया, जिसे खाकर मालिनी गर्भवती हुई और उन्हें संतान प्राप्त हुआ। लेकिन बहुत ही अफसोस की वो संतान मृतक पैदा हुआ था। इस कारण से महाराज प्रियंवद और भी दुखी हो गए और शमशान घाट जाकर अपने पुत्र को दाह संस्कार के साथ साथ अपना भी प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरे पूजा करो और मेरा प्रसार करो तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। उस देवी षष्ठी की वचन अनुसार महाराज प्रियंवद ने छठी मैया की, जो षष्ठी मैया के नाम से जानी जाती है, उनका उपासना किया और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से ये छठ व्रत का प्रचलन आया हुआ है। और भी इस प्रकार के बहुत सी कथाएं हैं, विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न प्रवचनों में पाया जाता है। इस अनुसार ये छठ व्रत का प्रचलन भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। साथ जो भी हिंदी भाषी है, पश्चिम बंगाल या भारत के और भी विभिन्न राज्यों में तथा विदेशों में भी इस छठ पर्व को बहुत ही उत्साह और उल्लास का साथ मनाया जाता है। सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज भी इसका मिसाल माथाभंगा का ये छठ घाट है। यहाँ का जो जन समागम, भक्तों की समागम देखकर आपको ये एहसास होगा कि इसमें सभी वर्ग के, सभी जाति के लोग भाग लेते हैं इस छठ पर्व को सफल बनाने में। साथ ही अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के माथाभंगा छठ घाट के छठ पूजा को सफल बनाने में हमारे माथाभंगा के महकमा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन दल, सिविल डिफेंस तथा ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज और उनके सहकर्मियों ने जो सहभागिता प्रदर्शन किया, जो सहयोग प्रदान किए, हम माथाभंगा हिंदी भाषी सेवा संघ की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और साथ ही सबसे आग्रह करता हूं, सब मिलकर एक बार बोलिए, छठी मैया की जय। सब मिलकर एक बार बोलिए, छठी मैया की।